वेलकम टू परम क्लासेस चैनल। दोस्तों, आप सभी का इस 48 टेम्परेचर की गर्मी में हार्दिक स्वागत है, गर्म जोशी से स्वागत है। तो दोस्तों, इस गर्म जोशी के माहौल में हम शांत रहकर पढ़ाई करें तो ज़्यादा सही रहेगा। दोस्तों, इन लू के थप्पड़ों को ये बता दें कि हमारी स्टडी भी कम गर्म जोशी वाली नहीं है। तो दोस्तों, आज हमारा जो नया टॉपिक है पढ़ने का वो है एडिटर इन हिंदी, दैट इज संपादक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो द एडिटर इन इंग्लिश and then we will know it in Hindi also. Friends, first of all, the point come in the mind that who is the editor? How we can define in easy words? Editor is a person who edit the writing material. That is editor. We can say that our mother is the editor, a tailor is the editor, a carpenter is the editor, a teacher is the editor. Now, why teacher is the editor? Because a teacher teach to students, but also he make him so much perfect that he can live in the world with different types of people or persons. Same thing is with editor. Editor, a person who cut, copy and paste the news or an article, that is the editor. Friends, according to Rudyard Kipling, editor is a centric point of any printed material, news material, who can make it readable or who is liable to make it readable by a reader or audience. According to Sheldon, if we say that editor is the main powerful person of any media organization, it may be newspaper or magazine, then it will be not wrong. It will be right in every way. Now friends, it is necessary to know the qualities of an editor. Friends, who is editor? What qualities should be in editor? Friends, editor is a person who should be the main authentic person for this post. But how? Friends, he should have knowledge of journalism, he should have knowledge of cut, copy and paste, he should have knowledge of the news and for news, knows for news. Because friends, it is well said that if he will have not these qualities, then there will be a big blunder mistake in print media, and the print media will stand in the court, right? It is well said that
if a mistake had been made by doctor, then doctor bury him. If this mistake is made by a judge, then it will be a rule or any article. If the mistake is done by a carpenter, then it will be a design of furniture. If the mistake is done by a housewife or chef, then it will be a new recipe. But when a mistake is done by editor, that is not forgettable. It will be a more and more punishable. Punish may be on the basis of mistake done by editor. So that is said that editor should have 4 eyes. 4 eyes. Read, read and read. First. Second, read and understand. Read and cut. Read and paste. If an editor has these 4 eyes and a hand of solid writing, then that will be a successful editor. And one more quality of an editor is leadership quality. Friends, every reader know to the editor, not a sub-editor, while the work is done by a sub-editor, and the name will publish of editor, and editor should know that he will examine by a reader every morning before the cup of tea. Friends, editor can't say that mistake is very normal. Friends, mistake is mistake because the mistake is correlate with the public, the reader, the country and the world. So, editors should know that the word is worship of Brahma. So that in this situation he can do the judgment with the journalism ethics. Now, thing is that what are the liabilities of an editor? First liability is for self, second is for readers, and third is for owner or media house in which he is working. For self, friends, editor is a person who write according to the rules of and line of media house in which he is working, but his own views are assets for him or her, so that when the question of correlate with his views and the pen or writing, then he should choose his views, not pen. Because friends, if a person is free from his views or right of speech, he or she can
earn from anywhere else. But if his pen or views has been captured by the power of economy, then all should be, all will be ruined, all will be spoiled, so that he should liable for himself or herself. Second is for the reader. Friends, editor should know that the weightage weighing machine of the ability of editor is in hand of editor, readers not in editors. Friends, a reader is a person who examines an editor by his or her views. If editor is impressive, then the newspaper or magazine will be praised in market. Otherwise, the media will be neglected by readers in few seconds. So, editor should know that he is liable for the reader at first, and then he should edit everything to think that he is also a reader. He should keep in mind that if he will be a reader, then what he want to know. That is the second liability of editor. Third main liability for owner or media house in which he is working, he is servicing. So friends, that is well said that we should liable faithful for our organization, for a person who give us bread, so that he should keep in mind that the editing should not go wrong, so that the media house, otherwise the media house will be dragged into the court by every person. These are three main liabilities of an editor. Fourth is, he should think about the safety of a reporter or staff. Friends, a reporter or journalist brought some exclusive news that may be harmful for him or her, so that editor should liable for the safety of such journalists or reporters, so that they will service in fearless environment. And an editor should look that the media house has or built an working environment with peace of mind and without any worry. Friends, these are the main liabilities of an editor. Now, the question is, how we can define that the editor may be a synonym of a captain in a cricket match. Friends, first of all, we go through the definition of
captain. A captain is a person who decide that who will be play in the match, who will perform as bowler, who will be in fielding at nearby the boundary, behind the wicket or nearby the batsman, and he decide that who will be make the run in special situations, and the declaration of the match is in hand of a captain. And also the safety of every person who is playing for him, he should liable for each and every person. Friends, these are the main things which are correlated with editor. Friends, editor should be a person who can make a goodwill or spoil a goodwill of his own organization. Now friends, we will know all things in हिंदी also. दोस्तों, आज का जो एक टॉपिक है, हालांकि है तो सामान्य, लेकिन जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, द्विमार्गी संचार कर रहे हैं, इतना प्रभावी संचार वाला लेक्चर और क्लास और कक्षा वाला टॉपिक आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है संपादक। दोस्तों, संपादक कौन है? संपादक वह व्यक्ति है जो लिखा गया है उसके प्रति वह उत्तरदायी है, क्योंकि यही माना जाता है कि एडिटर वह व्यक्ति है, संपादक वह व्यक्ति है जो कि किसी लेखन कार्य को, लिखित कार्य को पढ़ने योग्य और उससे पहले प्रकाशन योग्य बनाता है। दोस्तों, यदि हम अन्य शब्दों में कहें तो संपादक वह व्यक्ति है जो सबसे ज्यादा उत्तरदायी है और केंद्र बिंदु है एक समाचार पत्र का। यदि संपादक सही है, उसकी कलम सही है, उसके विचार सही है, उसकी शैली सही है, तो समाचार पत्र या मैगजीन का नाम सुनहरे अक्षरों में हर पाठक के दिल और दिमाग में अंकित हो जाएगा। इसके अलावा हम ये जानते हैं कि एक एडिटर में, एक संपादक में क्या क्या विशेषताएं, क्या क्या फीचर्स, क्या क्या गुण होने चाहिए। दोस्तों, पहला तो उसका है मानवीय गुण। मानवीय गुण क्या है? उसका एक सही अर्थों में इंसान होना। दोस्तों, माना कि उसकी कलम है, वो उस मालिक की तरफदारी करने के लिए है जो कि उसके वेतन देता है। यह कहना गलत नहीं है कि जिस चीज खाएंगे बाजरी उसकी भरेंगे हाजिरी। हाँ, भरिए, लेकिन पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर आपको क्या करना है? अपनी आत्मा को गुलाम नहीं रखना है, अपनी आत्मा को कहीं गिरवी नहीं रखना है, अपने विचारों को बेचकर नहीं खाना है। हमें हमारे विचारों की स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इस स्थिति में हमें जानना है कि संपादक की कलम बिकाऊ नहीं होनी चाहिए। माना कि हमें उन शैली का अनुसरण करना है, फॉलो करना है जो कि हमारे समाचार पत्र द्वारा बताई गई है, लेकिन जब बात आती है सच और झूठ को अपनाने की, दोनों में से एक को अपनाने की, निष्पक्ष बात कहने की, तो हमें सच को अपनाते हुए निष्पक्ष बात कहनी, क्योंकि हमारा पाठक एक बहुत बड़ा ग्रुप है, समूह है। दोस्तों, यदि आपके विचार स्वतंत्र हैं, निष्पक्ष हैं और आप में काबिलियत है, तो आप किसी भी मालिक की जी हजूरी नहीं करेंगे फालतू में या व्यर्थ में।
वो ये चाहे कि गलत चीज को सही लिखे, नहीं लिखनी। आज लिख देंगे, कल हमारा जमीर बिकाऊ हो जाएगा। दोस्तों हमें पेड वर्क तो करना ही नहीं है, क्योंकि आप अपने विचारों से क्या कहेंगे? जब आप अपने घर पे जाएगा, एडिटर एक संपादक जाएगा, खुद से बात करेगा तो क्या कहेगा? आईने में खड़ा होकर क्या अपने से खुद से खुद से नजर मिला पाएगा? नहीं। इसलिए उसका क्या करना है? उसका जमीर बिकाऊ नहीं होना चाहिए, उसकी कलम बिकाऊ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगला है कि उसे सपाट बात कहनी है, सीधी बात करनी है, और जो यदि किसी ने क्लिष्ट भाषा यूज करनी है तो उसको सीधी एंड सपाट समझने योग्य बनानी है। उसे व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, उसे मानवता का तो ज्ञान होना ही चाहिए, शालीनता, वाणी में मधुरता, ईशानी होनी चाहिए, पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर, दोनों चीजें होनी चाहिए दोस्तों। पांव में चक्कर और मुंह में शक्कर, इन दोनों का मतलब क्या है? दोस्तों संपादक को चाहिए कि वह हर समय समाचार पत्र में नहीं बैठा रहे, ऑफिस में नहीं बैठा रहे, सारा काम करने के लिए सब एडिटर है, उसकी हेल्प के लिए रिपोर्टर है, जर्नलिस्ट है। उसे क्या करना है? मार्केट में या बाजार में उसे देखना है कि किस तरह की शैली और क्या पैटर्न चल रहा है, क्या डिजाइनिंग चल रही है समाचार पत्र की, क्योंकि नाम उसी का छपना है, नाम उसी का आना है। गलत होगा तो और सही होगा। दोस्तों बात यह आती है कि उसे मार्केट में तो रहना है, लेकिन उसे हर कोई क्यों बताएगा कि हमारे साथ सज्जा ये है, हम डिजाइनिंग ये करते हैं? तो पांव में चक्कर, मुंह में शक्कर। दोस्तों वाणी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला सुनकर गदगद हो जाए। दोस्तों कई ऐसे अपने प्रधानमंत्री हुए हैं भारत के, जिनकी प्रशंसा उनके विपक्षी दल भी करते थे। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ऐसा एक संपादक को होना है कि जिसकी वाहवाही में के कशीदे उसके दूसरे जो मीडिया विभाग है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनके प्रतिद्वंदी है, वो भी उनकी वाहवाही करे। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा कोई और को शीतल करे, आपा शीतल होए। तो दोस्तों ऐसी वाणी उसे बोलनी है, और उसे अंधे को अंधा नहीं लिखना है, सूरदास लिखना है। बात वही है। दोस्तों मैं वापिस आपको एक उदाहरण देता हूं कि यदि आप थक हार कर घर जाते हैं, एडिटर के लिए भी लागू है, यदि आप थक हार कर घर जाते हैं और माँ को कहते हैं माँ भूख लगी है, कुछ रोटी खाने को दे, तो मम्मी गरम गरम खाना परोस देगी। यदि आपने एक दिन आपका बाहर कहीं दिमाग खराब है और माँ को कह दिया ए बाप की बहू खाना दे, बात वही है, लेकिन दूसरे में आपको क्या मिलेगा वो सोच सकते हैं। यही एक एडिटर को करना है, बात कहनी है, पाठकों के सामने वही बात रखनी है, लेकिन जैसा वो चाहते हैं पाठक, मालिक नहीं, पाठक चाहते हैं वो बात रखनी है। क्योंकि उसकी परीक्षा हर रोज आंख खुलते ही चाय की प्याली से होती है दोस्तों। उसकी ईमानदारी का तराजू उसके हाथ में है। किसके हाथ में है? एक पाठक के हाथ में। वही तोलता है कि कितनी ईमानदारी के साथ लेखन किया गया है। लेखन तो किसने किया होगा? टाइपिस्ट ने किया होगा, लेकिन लाइबल कौन है? एक एडिटर है लाइबल। तो दोस्तों बात आती है, ये तो उसके गुण की बात हुई। उसे व्याकरण का नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, उसे एडिटिंग का ज्ञान होना चाहिए, किसको हटाए, किसको जोड़े, किसको पूरा ही हटा दे, किसको आगे के दिन के लिए ले जाए। उसे एन फॉर नोज और एन फॉर न्यूज, उसे न्यूज वर्ड का मालूम होना चाहिए। बहुत सी न्यूज होती है, पेड न्यूज भी आती है, एक रिपोर्टर है वो उसमें टाइपिस्ट को देता, टाइपिस्ट टाइप भी कर देता है, लेकिन उससे ये देखना है कि क्या ये न्यूज वर्ती है, क्या उसमें समाचार मूल्य है, क्या ये छपने योग्य है। इन सब चीजों का उसे ध्यान रखना है। तो दोस्तों बात आगे आती है कि ये बात तो जानी हमने कि उसमें गुण क्या होने चाहिए, लेकिन बात ये आती है उसके उत्तरदायित्व क्या है, किसके प्रति उत्तरदायित्व है उसके। तो पहला उत्तरदायित्व किसके प्रति है? पहला उत्तरदायित्व है वह पाठक जिसके लिए समाचार पत्र प्रकाशित होने वाला है, जिसके लिए वो मटेरियल एडिट कर रहा है, संपादित कर रहा है, संपादन कर रहा है। तो दोस्तों उसके लिए करना क्या होगा? पहला उत्तरदायित्व किसके प्रति है? पहला उत्तरदायित्व है पाठकों के प्रति। दोस्तों पाठक क्या चाहता है वो उसे जानना है। जब वो एडिटिंग कर रहा है, जो संपादन कर रहा है, तो उसे सोचना है कि मैं क्या हूं? एक पाठक हूं, न कि एक संपादक हूं। यदि मैं पाठक होता तो मुझे कैसा लगता
कौन सी चीज मुझे अच्छी लगती, कौन सा राइट अप अच्छा लगता, वो उसे काम करना है। दूसरी बात कि उसे खुद के प्रति क्या लायबिलिटी है। दोस्तों मैं पहले ही कह चुका हूं, खुद के प्रति लायबिलिटी उसकी ये है कि न विचार बेचो न कलम बेचो, न विचार बेचो न कलम बेचो, अगर बेचना है तो अपने मालिक को अपना कुछ समय बेचो, क्योंकि मालिक क्या करता है उसके लिए आपको पे कर रहा है। लेकिन आपने यदि विचार बेच दिए, अपनी शैली बेच दी, अपने व्यू बेच दिए, अपनी स्वतंत्रता, सोचने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गिरवी रख दी, या कलम को बेच दिया, तो क्या होगा? अपने शब्दों को गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया तो क्या होगा? हम अपने साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। जो सत्य में जयते सत्यम शिवम सुंदरम है, हम उसके उपासक नहीं कहलाएंगे। ये दोस्तों बात है। थर्ड है किसके प्रति होगा? तीसरा होगा अपने मालिक के प्रति। जिसकी खाए बाजरी उसकी भरे हाजिरी, लेकिन हाजिरी इस ढंग से भरनी है, ऐसा नहीं कि मेरे को सैलरी मिल रही है, मेरे को क्या करना है, मेरा एडिटिंग का काम है। दोस्तों कई बार ऐसी गलतियां पहुंच जाती है कि मालिक को घसीट कर कोर्ट में ले जाया जाता है। यह नहीं होना चाहिए कभी भी। उसे कॉपीराइट का ध्यान होना चाहिए, उसे एडिटिंग का नॉलेज होना चाहिए, उसे एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म का ध्यान होना है। तभी तो एडिटर सेंट्रिक पॉइंट है दोस्तों, केंद्र बिंदु है, तभी तो उसका सबसे ऊपर बिठाया गया है समाचार पत्र में या ऑर्गेनाइजेशन में। दोस्तों ये मेन चीजें हैं। जो एक और है, अपने जो कर्मचारी है जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनके साथ तालमेल बिठाना और उनके बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा को सुनिश्चित करना। दोस्तों कोई भी रिपोर्टर, कोई भी जर्नलिस्ट किसके लिए काम कर रहा है? वो मालिक को नहीं जानता, वो जानता उस एडिटर को, वो जानता उस संपादक को जिसके अंडर में वो काम कर रहा है। दोस्तों एक संपादक को चाहिए कि वह हर तरह के जो वो आपके रिपोर्टर हैं या पत्रकार हैं उन सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। वो कई बार ऐसी समाचार या ऐसा एक्सक्लूसिव न्यूज ले आते हैं कि उसके लिए उसे खतरा भी महसूस होता है। तो दोस्तों उसे उसके बारे में बताना नहीं है। यदि क्रिमिनल है वो ऑफिस भी पहुंच जाए तो उसे उसका नाम नहीं बताना है, कि इशारा भी नहीं करना है कि कौन। उसे ये बोले कि मेरा समाचार पत्र न्यूज लाया है, राइट। तो दोस्तों ये चीजें होती है जो एक उसे पूर्ण संपादक बनाते हैं। लेकिन दोस्तों बात आती है, क्वेश्चन पूछा जाता है प्राय यह है कि एक संपादक एक टीम के कप्तान की तरह कार्य करता है, इसे समझाइए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं, जो आप सभी बच्चे देख रहे होंगे, अभी T20 भी चल रहा है ना, IPL भी चल रहा है। तो IPL में, चलिए एडिटर को साइड में रखते हैं, IPL में एक कैप्टन या कप्तान की भूमिका क्या होती है आप सभी जानते हो। चलो फिर मैं बता देता हूं कि एक कप्तान की भूमिका ये होती है कि सबसे पहले चयनकर्ताओं को प्रभावित करना और किन क्रिकेटर्स को, किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल करना है उसको तय कौन करता है? कप्तान करता है। ओके, उसके बाद कौन कितने नंबर पर खेलेगा ये कौन तय करता है? वो भी यही करता है। मिडिल ऑर्डर में कौन जाएगा, ओपनिंग कौन करेगा और नाइट राइडर के रूप में कौन जाएगा, ये सब वो तय करता है। यहां तक कि बॉलिंग कौन करेगा, कौन कितने विकेट लेगा और किसको बाहर करना है। यदि बॉलिंग सही नहीं कर पा रहा, किसे ये कहलवाना है कि वो इंजरी हो गई और वो बाहर आ जाए, ये सारी स्ट्रेटेजी किसके दिमाग में चलती है? एक कप्तान के दिमाग में। उसके बाद वो खुद कहां खड़ा होगा वो खुद तय करता है। लेकिन कोई व्यक्ति कहां खड़ा होगा, कोई और उसके खिलाड़ी होंगे वो कहां खड़े होंगे, जैसे कि बाउंड्री के पास कौन होगा, या विकेट की पीछे, विकेटों के पीछे विकेट कीपिंग कौन करेगा, या उसके दाएं और बाएं जो क्रिकेटर उसके पास कौन खड़ा रहेगा, यहां तक कि कौन कितने ओवर करेगा। और इसके अलावा दोस्तों टीम की आवश्यकता के अनुसार कौन जल्दी आउट होगा और कौन कितने रन मारेगा, यह भी तय कौन करता है? एक कप्तान करता है। और यहां तक कि कई बार कई महान बल्लेबाज नर्वस 90s के शिकार हुए, क्योंकि पारी घोषित कर दी गई। किसने की? कप्तान ने, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी, यदि पारी घोषित नहीं करते तो टीम नहीं जीतती। तो दोस्तों बात ये आती है, सेम यही गुण एक संपादक में होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं?
बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना, कौन किस टाइम आएगा, कौन कितना काम करेगा, कौन रिपोर्टिंग करेगा, कौन एडिटिंग में उससे हेल्प करेगा, कौन सब एडिटर के रूप में रात को जागेगा, कौन एड देखेगा, कौन उसकी प्रूफ रीडिंग में हेल्प करेगा, ये सारा काम कौन करता है? एक एडिटर करता है। दोस्तों यही सेम कार्य एक सेना के सेनापति के भी होते हैं। सेनापति जैसे पूरी सेना का रसद का ध्यान रखता है कि उसे कहीं कमी ना हो जाए रसद में, उसे लड़ना है तो कौन सी दिशा से लड़ना है, छापामार युद्ध करना है, कैसे करना है, या मौन रहकर हमें मार्केट में अपना सिक्का जमाना है, ये सारा तय कौन करता है? एक सेनापति। वही एक एडिटर करता है। दोस्तों एक संपादक बनना आसान है, लेकिन जब संपादक का कार्य किया जाता है ना दोस्तों, उसे कार्य दिया जाता है, उसे निभाना उतना ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों एक घर में दादाजी कहलाना, दादाजी बनना बहुत आसान है, लेकिन दादा का दायित्व जो है उसे निभाना उतना ही कठिन है। दोस्तों कोई भी कार्य होता है ना और दादाजी घर में मौजूद है तो नाम किसका होगा? दादाजी, अच्छा फलान के पोते ने काम किया है, फलान के बेटे ने काम किया है, नाम किसका आ रहा है? दादाजी का। और काम कौन कर रहा है? उनके बेटे पोते कर रहे हैं, राइट? उनके ग्रैंडसन है, सन है, वो कर रहे हैं, लेकिन नाम अच्छाई बुराई किसकी होगी? दादाजी की, ग्रैंडफादर की। यहाँ ग्रैंडफादर कौन है? न्यूज़पेपर में एडिटर है। मालिक को कोई नहीं जानता। दोस्तों मालिक का काम इतना है, मैंने पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है, मेरे को मेरा पैसा मिल जाए, इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा जो मैंने दिया है वो एड के रूप में पैसा मिल जाए। और उसे ये कहा जाता है एडिटर को कि भैया मेरा टारगेट इतना है मंथ का, वो पूरा हो जाना चाहिए, लेकिन इस टारगेट को पूरा करने के चक्कर में कहीं वो पेड न्यूज के फेर में ना पड़ जाए। दोस्तों हमारे जो मेन एथिक्स है जर्नलिज्म के, वो ये है कि हमारा देवता कौन है? माना सरस्वती है, क्योंकि हम लेखन कार्य से जुड़े हुए, लेकिन हमारा असली देवता कौन है? कौन है जो हमारे आय का मेन स्रोत है? कौन है जो हमारा विज्ञापन पढ़कर हमें उत्साह प्रदान करता है? कौन है जो हमारी न्यूज को पाठक पत्र के रूप में हमारी वाहवाही सराहना करता है? वो पाठक है। दोस्तों वो पाठक है जो सुबह सुबह आपकी परीक्षा ले लेता, परख कर लेता है कि आपके अंदर कितना मादा है। यदि वो पत्र में लिखता है तो किसको लिखता है? मालिक को नहीं, संपादक के नाम पत्र जाता है। दोस्तों संपादक ये जाना जाता है, माना जाता है कि वो पत्र एक संपादक ने पढ़ लिया होगा। संपादक किसी देश के प्रधानमंत्री से कम नहीं है। दोस्तों राष्ट्रपति रबड़ की मोहर है, लेकिन संपादक कौन है? उस प्रधानमंत्री की तरह है जो कि सर्वे सर्वा है उस देश का, उस समाचार पत्र का। दोस्तों जैसे कि एक प्रधानमंत्री कहीं भी बाहर जाता है तो बात कैसे करता है कि उसके देश को नीचे झुकना नहीं पड़े, लेकिन कई दोस्तों ऐसे भी हैं, नेता लोग हैं जो कि ऐसी बात करते हैं कि हर रोज देश को नीचे झुकने की नौबत आ जाती है। लेकिन एक प्रधानमंत्री क्या करता है? यह सोचता है कि हमारा देश का गौरव कैसे बढ़े, और वैसा एक संपादक को करना है। मार्केट में क्या बातें आ रही है उनके मीडिया के बारे में, क्या करना है जिससे गुडविल वापस बने, क्या वो चीज है जिससे कि ख्याति बने, उसकी नाम बने। दोस्तों एक चीज और बता दूं, बहुत ऐसे समाचार पत्र हैं जिन्होंने कम समय में ही अपनी अच्छी पहुंच और अपना नाम कमा लिया, और कुछ ऐसे न्यूज़पेपर भी हैं जो सबसे पुराने थे और आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। दोस्तों ये चीजें हैं जो एक संपादक पर डिपेंड करती है। एक संपादक पर ही सारा मीडिया समूह निर्भर होता है। दोस्तों तो दोस्तों अब आपने जान लिया है कि संपादक कौन है और संपादक की लायबिलिटीज क्या है, उसके कार्य क्या है और उसका मेन गुण धर्म क्या है। तो दोस्तों आज के जो विषय में आपने जाना है दोस्तों, यह आपके हर व्यूज से इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनटीए नेट का एग्जाम हो, चाहे पीआरओ का एग्जाम हो, चाहे आपका बीजेएमसी और एमजीएमसी हो। एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आज का। तो दोस्तों आपको करना क्या है? बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब करना और देखते रहिएगा हर समय हर वक्त ओनली परम क्लासेस चैनल। कल हम इसी समय इसी मंच पर इसी क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।